ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اماں، آپ روز روز مجھے سبزی لینے بھیج دیتی ہیں اور وہ سبزی والا مجھے عجیب عجیب نظروں سے گھورتا ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا اس کے سامنے جانا۔ آئزل نے اپنی ماں کے سامنے منہ بسورتے ہوئے کہا تھا اور صحن میں بچھے تخت پر لیٹ گئی تھی، جبکہ فردوس اس کی حرکتوں کو خوب جانتی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ آئزل کو باہر سبزی لینے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، جب ہی وہ روز کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی تھی۔ آج بھی وہ ایک نیا بہانہ لے کر اپنی ماں کے سامنے موجود تھی۔ آئزل، اگر میں چل سکتی تو کبھی بھی تجھے سبزی لانے کا نہیں کہتی، مگر تو بھی جانتی ہے کہ میں جتنی دیر میں خود کو گھسیٹتی ہوئی سبزی لینے باہر جاؤں گی، وہ سبزی والا نکل چکا ہوگا۔ آئزل کی ماں نے دکھ سے جواب دیا۔ آئزل نے لیٹے لیٹے ہی ہلکا سا سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا، جن کے چہرے پر زمانے بھر کی تھکن چھائی ہوئی تھی۔ اچھا اماں، اب میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا جو آپ اس طرح سے دکھی ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی سبزی لینے، اور میں نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ سبزی والا مجھے گھورتا ہے، بلکہ وہ تو نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ آئزل نے تخت پر پڑے سوکھے پتوں کو اپنی ہتھیلیوں سے مسلتے ہوئے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دوپٹہ اٹھا کر اپنے سر پر اوڑھا۔ میں جا رہی ہوں سبزی لینے، سبزی والا آ گیا ہے۔ آئزل نے سبزی والے کی آواز سنتے ہی سرعت سے گھر سے باہر جاتے ہوئے کہا۔ فردوس نے اداس نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا، جس کا حسن دن بدن مزید نکھرتا جا رہا تھا۔ وہ بے حد حسین و جمیل ہوتی جا رہی تھی، مگر اسے زمانے کی نظروں سے وہ بچا کر نہیں رکھ سکتی تھی، کیونکہ آئزل کے سوا اس گھر میں کام کرنے والا اور کمانے والا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ فردوس دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئی تھی۔ وہ تو اپنی ضروریات کے لیے بھی آئزل کو ہی آواز دیتی تھی۔ آئزل سبزی لینے جا چکی تھی، مگر ان کی نگاہیں دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ جب تک آئزل گھر میں نہ آ جاتی انہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ آئزل سبزی والے کے سامنے کھڑی اس سے بحث کر رہی تھی۔ اللہ اللہ، اتنے مہنگے آلو، اور یہ ٹماٹر کون اتنے مہنگے بیچتا ہے؟ تمہارا تو بس نہیں چل رہا کہ تم ٹماٹر کے بدلے میرا گردہ مانگ لو۔ آئزل نے اس سبزی والے کی اچھی خاصی کلاس لگاتے ہوئے کہا۔ وہ غصے سے اس سبزی والے کو گھور رہی تھی، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کوئی عام سبزی والا نہیں تھا، بلکہ سبزی والے کے بھیس میں چھپا ہوا ایک پرائیویٹ ایجنسی کا خفیہ جاسوس تھا۔ وہ شہروز آفندی تھا۔ وہ آئزل کی بات نہیں سن رہا تھا، کیونکہ اس کا دھیان سامنے کھڑی بس پر تھا۔ وہ خفیہ جاسوس اس علاقے میں اپنا بھیس بدل کر آیا تھا۔ آئزل نے جب یہ دیکھا کہ وہ سبزی والا تو اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا، تو اسے شدید غصہ چڑھا۔ او بھائی، میں تم سے بات کر رہی ہوں، کہاں دھیان ہے تمہارا؟ آئزل نے اسے دوبارہ سے مخاطب کیا، مگر شہروز کا دھیان اس پر تھا جہاں ڈرگز کی لین دین ہو رہی تھی۔ وہ اس علاقے میں اس گروہ کو پکڑنے آیا تھا۔ وہ ایک منظم گروہ تھا جو شہر کے چھوٹے علاقوں میں جا کر وہاں کے کم عمر لڑکوں کو اپنا نشانہ بناتے تھے۔ اس گروہ کی سرپرستی ایک بہت طاقتور شخص کر رہا تھا، اسی لیے اس گروہ کو پکڑنا ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس سبزی والے کا دھیان آئزل کی طرف بالکل بھی نہیں تھا۔ گرمی اور پسینے سے آئزل کا برا حشر ہونے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اماں اس کا گھر میں انتظار کر رہی ہیں۔ جتنی دیر میں وہ گھر پہنچے گی وہ اتنا ہی پریشان ہو جائیں گی، اسی لیے وہ جلد از جلد سبزی لے کر گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ آئزل نے اپنے ہاتھ میں پکڑا آلو شہروز آفندی کے سر پر مارا۔ شہروز نے فوراً ہی چونک کر اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو گھورا، جو اپنی کمر پر ہاتھ رکھے اسے ہی گھورنے میں مصروف تھی۔ جاہل لڑکی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شہروز آفندی غصے سے غرایا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس لڑکی کا منہ توڑ دے۔ آدھے گھنٹے سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں، آواز نہیں آ رہی کیا؟ پتہ نہیں تمہارا دھیان کہاں پر ہے؟ تمہارا سبزی کا ٹھیلا تو میں آج ہی بند کروا دوں گی۔ ایک تو میری بات نہیں سنتے، اوپر سے مجھ سے بدتمیزی کرتے ہو۔ آئزل نے لڑاکا عورتوں کی طرح اپنے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ شہروز نے اس کی چلتی زبان کو ضبط سے دیکھا، جو اسے لڑنے مرنے کے لیے تیار تھی، اور پھر ایک گہری سانس لی۔ آئزل سبزیاں اٹھانے آگے بڑھی۔ اسی وقت شہروز آفندی نے غصے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ اس لڑکی کی اتنی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر آئندہ مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا دماغ درست کر دوں گا۔
शहरोज ने सख्ती से उसे घूरते हुए कहा और सस्ती सब्जियां एक शॉपर में डालकर शॉपर उसके हवाले करके आगे बढ़ा और आइजल उसे घूर कर रह गई। कहाँ जा रही हो जाने मन, कभी हमें भी देख लिया करो। तुम्हारी तो एक झलक के लिए हम दिन रात यहीं बैठे रहते हैं, मगर तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं होते। आइजल सब्जियां लेकर घर की तरफ जा रही थी जब गली के नुक्कड़ पर बैठा हुआ लड़का उसके सामने आ खड़ा हुआ। आइजल फौरन रुकी, वरना वो उस लड़के से टकरा जाती। आइजल ने घूर कर अपने सामने खड़े लड़के को देखा, जबकि वो मुस्कुराता हुआ आइजल को देख रहा था। फुरकान, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है मेरे सामने मत आया करो और ये बकवास मत किया करो, मगर लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। आइजल ने फाड़ खाने वाले लहजे में फुरकान से कहा, जबकि उसकी बात सुनकर फुरकान ने अपने लाल दांतों की नुमाइश की थी। आइजल ने नागवारी से अपना मुंह मोड़ा। तुम्हें देखने के अलावा मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आती। तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हारे घर रिश्ता लाना चाहता हूं। तुम बता दो मैं कब अपने अम्मा अब्बा को लेकर तुम्हारे घर आऊं। फुरकान ने ढिठाई का मुजाहरा करते उससे सवाल किया और उसका सवाल सुनकर आइजल की बड़ी बड़ी आंखें हैरत से मजीद फैल गईं। उसने अपने सामने खड़े फुरकान का तफसीली जायजा लिया। वो मोहल्ले का लड़का था जिसके जिस्म पर हड्डियों के सिवा कुछ नहीं था। उसके दांत पान और गुटके की ज्यादती की वजह से लाल होकर अब काले पड़ने लगे थे। उसके चेहरे पर छुदरी छुदरी सी दाढ़ी थी, जबकि गले में उसने कई तरह की जंजीरें पहनी हुई थी और कानों में बालियां पहनी हुई थी। आइजल ने उसके हुलिये को बेजारी से देखा। मुझसे शादी करने का ख्वाब अपने जहन से निकाल दो। मैं कभी भी तुम जैसे लड़के से तो हरगिज शादी नहीं करूंगी, आइजल ने गुर्राते हुए कहा और उसके सामने से निकलकर जाने लगी। मगर फुरकान ने उसी लम्हे उसकी कलाई थाम ली। आइजल ने पलटकर खूनख्वार नजरों से उसे घूरा। फुरकान, मेरा हाथ छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आइजल ने दबे दबे लहजे में चीखते हुए कहा। दोपहर का वक्त था, इस वक्त गली में कोई भी नहीं था, इसलिए फुरकान अपनी मनमानी करने पर उतर आया। अगर मैं तुम्हारा हाथ ना छोड़ूं तो क्या कर लोगी? फुरकान ने हंसते हुए हविस भरी नजरों से आइजल को देखते कहा। आइजल को उस लम्हे अपनी बेबसी पर जी भर कर रोना आया, मगर वो उसके सामने रोकर कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। पहले मुझे बताओ, मैं कब तुम्हारे घर अपने अम्मा अब्बा को लेकर आऊं? फुरकान ने जिद्दी लहजे में सवाल किया। फुरकान, मैंने तुमसे कहा है मैं तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? आइजल ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। और मैंने कहा है मैं तुमसे ही शादी करके रहूंगा। मैं इसी हफ्ते अपने अम्मा अब्बा को लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूं। सीधी शराफत से मुझसे शादी करने की हामी भर लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुमने मुझसे शादी से इनकार किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर से उठाकर ले जाऊंगा, फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, फुरकान ने सफाक लहजे में कहा। उसका हाथ अब भी फुरकान की गिरफ्त में था और उसकी बात सुनकर आइजल की रूह तब काम गई। मैं इसी हफ्ते तुम्हारे घर आऊंगा और अगर तुमने मुझसे शादी करने की हामी ना भरी तो तुम्हारी माँ के सामने ही तुम्हें उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा। फिर मैं देखूंगा तुमसे कौन शादी करने की हामी भरेगा, फुरकान ने सफाक लहजे में कहा। वो जानती थी कि वो किसी भी हद तक गिर सकता है। यह भी गनीमत था कि फुरकान उससे शादी के लिए कह रहा था। अगर वो अभी यहाँ से उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता तो आइजल को बचाने वाला कोई भी नहीं था। उसकी माजूर माँ तो उसके पीछे नहीं आ सकती थी और बाप को इस दुनिया से गए एक हादसा होने को आया था। पूरा मोहल्ला जानता था कि आइजल और उसकी माँ के घर में वो तन्हा रहते हैं। आइजल ने एक झटके से उससे अपना हाथ छुड़ाया। इसी असना में वही सब्जी वाला गली में दाखिल हुआ। उसने संजीदा नजरों से आइजल और उसके सामने खड़े लड़के को देखा। सब्जी वाले को देखकर फुरकान अपनी जगह जाकर वापस बैठ गया और अपनी जेब से सिगरेट निकालकर सुलगा लिया। आइजल ने पलटकर उस सब्जी वाले को देखा जो उसके लिए फरिश्ता बनकर आया था। आइजल ने नम नजरों से अपनी कलाई की तरफ देखा। उसकी कलाई पर फुरकान की उंगलियों के निशान गड़ गए थे, जबकि शहरोज आफंदी ने बहुत गौर से इस मंजर को देखा था। वो जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। आइजल सब्जी का शॉपर थामे तेज तेज कदम उठाती अपने घर की जानिब गई, जबकि फुरकान ने अपने होंठों में
सिगरेट दबाई, मुस्कुराती नजरों से उसे जाता देखा। उसे यकीन था कि अब जब हफ्ते को वो अपने माँ बाप को लेकर आइजल के घर जाएगा तो वो इससे शादी करने से इनकार नहीं करेगी, क्योंकि उसने आइजल की आंखों में खौफ देख लिया था और वो अपनी जीत पर सरशार सा मुस्कुरा रहा था। आइजल तेजी से घर में दाखिल हुई और अपने पीछे दरवाजे को सख्ती से बंद किया। उसे अभी भी डर था कि कहीं फुरकान उसके पीछे ना आ जाए, और वो वहीं दरवाजे से लगकर बैठ गई। वो सख्त खौफजदा हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो अपनी माँ के सामने रोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वहीं बैठकर रोकर उसने अपने दिल के बोझ को हल्का किया और फिर सख्ती से अपनी आंखों को रगड़ते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई। फिरदौस इस वक्त कमरे में तख्त पर बैठी सिलाई कर रही थी। वो चलने फिरने से माजूर थी, मगर घर का खर्च चलाने के लिए उन्हें कुछ तो करना ही था। इसीलिए वो मोहल्ले के कपड़े सिलाई करके अपने घर का खर्च पूरा करती थी। उनके घर में कमाने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था, बस वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा थी। कुछ देर बाद आइजल अपनी जगह से उठी और सब्जियां बावर्ची खाने में रखकर अंदर कमरे की तरफ चली गई। कमरे में जाते ही उसे एक ठंडक का एहसास हुआ। वो खामोशी से जाकर दूसरे पलंग पर बैठ गई। फिरदौस ने नजरें उठाकर अपनी बेटी की तरफ देखा। वो जब सब्जी लेने गई थी तो चहकते हुए गई थी, और अब वापस आई थी तो बिल्कुल खामोश थी। उसका चेहरा सता हुआ था और आंखें शायद रोने की वजह से सुर्ख हो रही थी। क्या हुआ आइजल, कोई बात है क्या? इस तरह से खामोश क्यों बैठी हो? फिरदौस ने गौर से अपनी बेटी का चेहरा देखते उससे सवाल किया। आइजल ने नजरें उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा और एक गहरी सांस अपने अंदर खींची। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आइजल ने अपनी माँ से नजरें चुराने की नाकाम कोशिश करते कहा था। आइजल, मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही पहचान जाती हूँ। तुम्हें रास्ते में वो मनहूस फुरकान मिला होगा। फिरदौस ने अफसोस से अपनी बेटी को देखते कहा। आइजल ने बेबसी से अपनी माँ की तरफ देखा और सर झुकाते हुए इस्बात में सर हिला दिया। अम्मा, अगर मेरे अब्बा जिंदा होते तो इस फुरकान की कभी हिम्मत ना होती कि वो मुझसे ऐसी बातें करे। अब्बा मुझे छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चले गए? आइजल के चेहरे पर उदासी रकम थी। उसकी बात सुनकर फिरदौस के दिल को कुछ हुआ। वाकई उनके शौहर इस दुनिया से बहुत जल्दी चले गए थे, और उनके जाने के बाद किसी रिश्तेदार ने इन्हें पलट कर पूछा तक नहीं था। वो दोनों अपनी जिंदगी की गाड़ी को खुद ही धकेल रही थी। क्या कहा है फुरकान ने तुम्हें? फिरदौस ने गहरी नजरों से अपनी बेटी के चेहरे को देखते सवाल किया, जबकि आइजल सर झुकाए बैठी अपने घर के टूटे हुए फर्श को घोर रही थी और साथ ही पांव के अंगूठे से फर्श को खुरच रही थी। उसने मुझसे कहा है कि वो इस हफ्ते अपने अम्मा अब्बा को लेकर आ रहा है मुझसे रिश्ता करने के लिए, और अगर मैंने उसे शादी से इनकार किया तो वो मुझे उठाकर जबरदस्ती अपने साथ ले जाएगा। आइजल ने अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए रोंदे हुए लहजे में कहा था, जबकि आइजल की बात सुनकर फिरदौस के दिल को कुछ हुआ। उनकी बेटी जाने कैसे इन सब से गुजर रही थी। काफी देर खामोशी की नजर हो गई। आइजल कुछ बोली थी और ना ही फिरदौस ने कुछ बोला, मगर वो माँ थी। भले वो खुद भी डर गई थी, मगर उन्हें अपनी बेटी को हर हाल में हौसला देना ही था। आइजल, फिक्र मत करो, मैं कल ही उसकी माँ को बुलाकर बात करती हूँ। वो ऐसे कैसे तुम्हें ये बोल सकता है? फिरदौस ने बड़ी मुश्किलों से खुद में हिम्मत जमा करते हुए कहा। आइजल ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी माँ को देखा। अम्मा, वो पहले भी कई बार उसकी माँ को शिकायत लगा चुकी हैं। अगर उसने बाज आना होता तो वो बाज आ चुका होता। जब उसने मौलवी साहब की बेटी को तंग किया था तो आपने देखा नहीं था किस तरह से मौलवी साहब ने फुरकान को पूरे मोहल्ले के सामने मारा। उस दिन के बाद से आज तक उसने उनकी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मगर मेरे पीछे तो कोई भी नहीं। अगर मैंने उससे शादी से इनकार कर दिया और वो मुझे यहां से अपने साथ ले गया तो मेरे पीछे आने वाला कोई नहीं। मायूसी उसके लहजे में बोल रही थी। आइजल के मुंह से ये अल्फाज सुनकर फिरदौस को लगा जैसे किसी ने उसके दिल अपनी मुट्ठी में लेकर जकड़ दिया हो। उन्हें अपनी माजूरी पर आज जी भरकर अफसोस हुआ था। उन्हें एहसास हो रहा था कि जैसे वो अपनी बेटी की हिफाजत करने में नाकाम रही हैं। फिरदौस की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों ही एक दूसरे से अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी। आइजल, तुम परेशान मत हो, जाकर बावर्ची खाने में खाना बनाओ। फुरकान की माँ से मैं बात करूंगी।
फिरदौस ने आइजल का जहन बटाने की गर्ज से उससे कहा। आइजल ने गहरी सांस भरी और कमरे से उठकर चली गई, जबकि फिरदौस गहरी सोच में गुम हो गई। अगले रोज किसी ने सुबह सवेरे ही घर का दरवाजा खटखटाया। आइजल उसी वक्त सोकर उठी थी। लंबे बाल गोल मोल से होकर जोड़े की शक्ल में बंधे हुए थे। आंखों में नींद की खुमारी थी। कल रात वो ठीक से सो नहीं सकी थी। सारी रात वो फुरकान और उसकी बातों के बारे में सोचती रही थी। एक लम्हे के लिए भी फुरकान की बातें उसके जहन से जुदा नहीं हुई थी और फजर के बाद कहीं जाकर उसकी आंख कुछ देर के लिए लगी थी, मगर अब दोबारा से उसकी आंख खुल गई थी। वो काफी देर तक अपने बिस्तर पर यूं ही पड़ी रही। उसका उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, मगर कोई दरवाजे पर खड़ा मुसलसल दरवाजा बजा रहा था। आइजल बुझे हुए दिल के साथ उठी और दुपट्टा उठाकर अपने शानों पर डाला। कौन है? आइजल ने आवाज लगाई। दरवाजा खोलें, मैं सब्जी वाला, शहरोज आफंदी ने नरम से लहजे में कहा। आइजल को उसकी आवाज सुनकर शदीद हैरत हुई। कल ही तो वो इस सब्जी वाले से लड़ी थी और आज वो सब्जी वाला उसके घर के दरवाजे पर मौजूद था। पक्का ये अम्मा से मेरी शिकायत करने आया होगा। आइजल ने परेशान होकर खुद से ही सरगोशी की। क्या काम है तुम्हें? आइजल ने डरते डरते सवाल किया और फिर कमरे की तरफ देखा। वो तो शुक्र था कि अम्मा कमरे में थी। आप दरवाजा खोलेंगी तो मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से कैसे बता सकता हूं? और फिक्र मत करें, मैं आपकी शिकायत करने हरगिज नहीं आया। शहरोज आफंदी ने उसकी परेशानी देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। आइजल को हैरत का शदीद झटका लगा। वो शख्स तो बिना देखे ही पहचान गया था। ऐसी बात नहीं है, मैं क्यों डरूंगी तुमसे? आइजल ने दरवाजा खोलते हुए चिड़े हुए लहजे में कहा था। एक तो रात भर उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी और सुबह सुबह ही सब्जी वाले ने उसका दिमाग खराब करने का ठेका उठा लिया था। शहरोज आफंदी ने दिलचस्पी से अपने सामने खड़ी लड़की को देखा। वो बेजार सी खड़ी थी। मैं क्यों तुमसे डरूंगी? तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे, बस इसीलिए मैंने तुम्हें आलू मारा था। आइजल ने मशकूक नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शहरोज आफंदी के चेहरे पर एक जानदार सी मुस्कुराहट फैल गई। मैं तो आपको सब्जी देने आया था, यहां से गुजर रहा था, सोचा आपसे पूछ लूं, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? शहरोज ने नरम से लहजे में कहा। सब्जी वाले की बात सुनकर आइजल ने सदमे से उसे घूरा। नहीं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद जाकर ले लूंगी, आइजल ने बेजारी से कहा और उसके मुंह पर दरवाजा बंद करने लगी थी, मगर शहरोज ने पांव अटकाकर दरवाजा बंद करने से उसे रोका। मैंने कल तुम्हारी और उस लड़के की सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए कह रहा हूं घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। वो फिर से तुम्हें तंग करेगा, इसलिए जो कुछ भी चाहिए मुझे बता दो, मैं लाकर दे दूंगा। शहरोज आफंदी ने बज़ाहिर नरम मगर सख्त लहजे में कहा था। अपने सामने खड़े सब्जी वाले की बातें सुनते आइजल के माथे पर बल पड़ गए। और इस सारे एहसान के बदले तुम मुझसे क्या चाहते हो? आइजल ने तल्खी से सवाल किया। इस खूबसूरत सी लड़की के मुंह से इतनी तल्ख बात सुनकर शहरोज ने हैरानी से उसे देखा। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस मुझे अच्छा नहीं लगा जब वो लड़का तुम्हें तंग कर रहा था, शहरोज ने नरम लहजे में कहा। तुम्हारी बहुत मेहरबानी, मगर मुझे किसी के एहसान की कोई जरूरत नहीं। मैं एक मुसीबत से निकलने के लिए किसी दूसरी मुसीबत में नहीं फंस सकती। अम्मा ने कहा है वो आज फुरकान की अम्मा को बुलाकर उसकी हरकतों की शिकायत करेंगी और फिर वो फुरकान मेरे रास्ते में नहीं आएगा। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, आइजल ने सर झटकते हुए तल्खी से कहा। अच्छा सही है, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा, मगर तुम मुझसे सब्जी तो खरीद सकती हो या नुक्कड़ वाली दुकान से अपनी रोजमर्रा की चीजें मंगवा सकती हो, लेकिन अभी तुम्हें घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं। इस बार शहरोज ने कुछ सख्त से लहजे में कहा। शहरोज आफंदी का सख्त लहजा सुनकर आइजल ने अबरू उचकाकर उसकी तरफ देखा। तुम आज करोगे या ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते तक कर लोगे? फिर ये सब कुछ मुझे ही करना है? मेरी माँ माजूर है, वो घर से नहीं निकल सकती और तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। मोहल्ले वाले मेरे किरदार पर बातें करेंगे, इसलिए मेरे लिए मजीद मुश्किलात मत बढ़ाओ। मैं जैसी हूं वैसे ही ठीक हूं। मैं फुरकान से निमट लूंगी, मगर प्लीज
अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो और मेरे लिए दूसरे फुरकान मत बनो। आइजल ने दोनों हाथ शहरोज के सामने जोड़ दिए और उसके मुंह पर अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। शहरोज आफंदी हक्का बक्का खड़ा रह गया। वो तो उसकी मदद करने गया था और उसने इसे ही गलत समझ लिया, मगर इन सब में आइजल की भी कोई गलती नहीं थी। हालात ने उसे तल्ख कर दिया था और वो अब किसी पर भी एतबार नहीं कर सकती थी। आप लोग जिस तरह से यहां पर आए हैं उसी तरह से वापस चले जाएं। मैं हरगिज भी आपके बेटे से शादी नहीं करूंगी, आइजल ने फुरकान और उसके माँ बाप के सामने खड़े होते कहा। फुरकान की माँ ने तनफ्फुर से आइजल की चलती जबान को देखा। फुरकान, क्या तू हमारी बेइज्जती करवाने हमें यहां लेकर आया है? फुरकान की माँ ने आइजल को घूरते हुए अपने बेटे से सवाल किया। फुरकान ने गुस्से में आइजल को घूर कर देखा। आइजल, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे माँ बाप के सामने कोई ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं। खामोशी से इस रिश्ते के लिए हामी भर लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फुरकान ने आइजल का बाजू सख्ती से थामते हुए उसे धमकी दी। आइजल ने एक झटके से उसे अपना बाजू छुड़ाया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तो तुम क्यों अपने माँ बाप को लेकर यहां चले आए? चले जाओ यहां से, आइजल ने कदरे गुस्से से फिंकारते हुए कहा। फुरकान ने जब्त से आइजल को देखा। उसे तो लग रहा था कि वो आइजल को बासानी काबू कर लेगा, मगर आइजल तो गुस्से में सब कुछ भूल गई थी। तुम्हारा निकाह तो मुझसे ही होगा, अब भले तुम इस निकाह के लिए राजी हो या ना, मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं, फुरकान ने आइजल को घूरते हुए कहा। आप लोग यहां से चले जाएं, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूं। मेरी बेटी आपके बेटे से शादी करने के लिए राजी नहीं है, फिर क्यों आप लोग उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? फिरदौस ने फुरकान के माँ बाप के सामने हाथ जोड़ते दुहाई दी, मगर वो तो जैसे खुद को फिरौन समझ बैठे थे। फुरकान की माँ ने गरूर से उस माजूर औरत को देखा जो उनके सामने हाथ जोड़े बैठी थी। उनकी फिरौनियत को मजीद तकवीयत पहुंची थी। आपको और आपकी बेटी को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल रहा है, वरना आप जैसे लोगों के घर के हालात ऐसे हैं कि इन हालात में कोई भी आपकी बेटी को ब्याहने के लिए आएगा। आपकी बेटी सारी जिंदगी इसी घर की दहलीज पर बैठी बूढ़ी हो जाएगी। आपको तो मेरे बेटे के पांव धोकर पीने चाहिए, पान चबाती हुई औरत के फखर से अपने बेटे को देखकर कहा, जो दर हकीकत किसी काबिल नहीं था। सारा दिन गली के नुक्कड़ पर बैठा आती जाती लड़कियों को छेड़ना उसका मामूल था। मैं आपके बेटे से हरगिज भी शादी नहीं करूंगी, आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, आइजल ने बेबसी से चीखते हुए कहा। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा दिमाग अभी ठिकाने लगा देता हूं। मुझसे निकाह की हामी भरो, वरना अभी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, फिर मैं भी देखता हूं कि कौन तुम्हें कबूल करेगा, फुरकान ने इंतहाई बदतमीजी से कहा। अपनी बेटी के साथ ये सब होते देखकर फिरदौस के दिल को कुछ हुआ। वो माँ थी, माजूर थी, कमजोर और बेबस थी, मगर अपनी बेटी के साथ जुल्म होता नहीं देख सकती थी। उनके सीने में दर्द की टीसें उठने लगी और उन्होंने बेख्तियार ही अपने सीने पर हाथ रखा। फुरकान, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे, हमने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरी बच्ची यतीम है, इस पर रहम खाओ, किसी मजलूम की आह मत लो, फिरदौस ने दुहाई दी। आइजल ने अपनी माँ की तरफ देखा। उनके मुंह से अल्फाज अभी भी बहुत मुश्किल से निकल रहे थे। आप लोग यहां से चले जाएं, मेरी अम्मा की तबीयत खराब हो रही है, मेरा इस दुनिया में इनके सिवा कोई नहीं है। आइजल ने बेबसी से उन लोगों के सामने हाथ जोड़े। पहले इस रिश्ते के लिए हामी भरो, मैं तभी यहां से जाऊंगा, वरना अभी के अभी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, फुरकान ने आइजल की तरफ देखते हुए कहा। आइजल ने अपनी माँ को देखा। वो अपने सीने पर हाथ रखे करा रही थी। अब आइजल के पास और कोई चारा नहीं था। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी, मगर प्लीज अभी यहां से चले जाओ, मेरी माँ की हालत पर रहम करो, आइजल ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बेबसी से कहा। फुरकान अपनी जीत पर सरशार सा हो गया और उस तड़पती हुई औरत को वहीं छोड़कर अपने माँ बाप को लिए घर से निकल गया। मैं कल बारात लेकर आऊंगा, तैयार रहना, फुरकान ने जाते जाते आइजल के कान में सरगोशी की थी। आइजल उसकी बात सुनकर सर ता पैर लरस कर रह गई। आइजल ने उस शख्स के सामने हार मान ली थी
और अपनी बेटी की जिंदगी को तबाह बर्बाद होता देखकर उसकी मां से बर्दाश्त नहीं हुआ था। फिरदौस अपने सीने पर हाथ रखकर नीचे गिर गई और उन्हें यूं गिरता हुआ देखकर आइजल तड़प कर उनकी तरफ बढ़ी। अम्मा, क्या हुआ आपको? आंखें खोलें। फिरदौस को होशो खिरत से बेगाना होते देखकर आइजल के हाथ पांव फूल गए। उसने फिरदौस का चेहरा थपथपाते हुए उन्हें होश में लाने की कोशिश की थी, मगर फिरदौस की आंखें बंद हो चुकी थीं। उनका तड़पना भी थम गया था और आइजल भी अपनी जगह साकित हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। काफी देर बाद वो होश में आई और उठकर पड़ोस में भागी और वहां से पड़ोस में रहने वाली औरत को बुला कर ले आई। वो औरत फिरदौस की अच्छी दोस्त थी। वो भागी भागी चली आई। जब उसने फिरदौस की ये हालत देखी तो आइजल की मदद से उसे उठाकर पलंग पर लेटाया। मेरी अम्मा को क्या हुआ है? ये ऐसे क्यों पड़ी हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रही? आइजल ने रोते हुए सवाल किया। उस औरत ने आगे बढ़कर फिरदौस की आंखों पर हाथ रखकर उसकी आंखों को बंद कर दिया और फिर आइजल के सर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। तेरी मां तुझे छोड़कर चली गई है, सब्र कर। उस औरत ने दुख से आइजल को उसकी मां के मरने की इत्तला दी थी और आइजल के सर पर आसमान आन गिरा था। शहरोज आफंदी आइजल के घर के बाहर खड़ा था। उसकी मां की मैयत दफनाई जा रही थी। वो अभी भी सब्जी वाले के भेस में यहां आया था। आइजल खामोशी से गुमसुम बैठी थी। उसकी निगाहें बस अपनी मां की मैयत पर जमी हुई थी। आसपास खड़े लोग सरगोशी कर रहे थे। कुछ देर बाद वो लोग आइजल की मां को दफनाने ले गए। आइजल ने बहुत खामोश नजरों से अपनी मां को खुद से दूर जाते देखा। आहिस्ता आहिस्ता आइजल के घर से सब लोग रुखसत हो गए। किसी ने नहीं सोचा कि आइजल इस घर में तन्हा कैसे रहेगी। उसका वाहिद सहारा उसकी मां इस दुनिया से चली गई थी। शहरोज आफंदी आइजल के घर के बाहर बैठा। उसका दिल आइजल को यूं अकेले छोड़ने पर रजामंद नहीं था, मगर उसका आइजल से कोई रिश्ता नहीं था। वो किस रिश्ते के नाते आइजल को सहारा देता? वो उसके घर के बाहर बैठा था और उसकी सब्जी की रेहड़ी पास ही पड़ी थी, ताकि आने जाने वाले ये समझे कि वो सब्जी बेचने के लिए वहां खड़ा है। इसी असना में उसे फुरकान गली में दाखिल होता नजर आया। उसे देखकर शहरोज के जबड़े भींच गए। अगर वो इस वक्त अपने असल हुलिये में होता तो उस लड़के का दिमाग दुरुस्त कर देता जो आइजल के पीछे पड़ा हुआ था। फुरकान आइजल के घर के सामने आकर रुक गया। शहरोज ने हैरानी से उसे देखा। फुरकान आइजल के घर में दाखिल होने लगा था। शहरोज ने तेजी से उठकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। फुरकान ने अबरू उचकाकर इस मामूली सब्जी फरोश को देखा जिसने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की थी। क्या मसला है? फुरकान ने बिगड़े हुए लहजे में शहरोज से सवाल किया। तुम इस घर के अंदर क्यों जा रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि आज ही इस लड़की की मां का इंतकाल हुआ है और वो लड़की अकेले घर में मौजूद है? शहरोज ने अपनी मुट्ठियों को भेंचते हुए जब्त से कहा। उसकी बात सुनकर फुरकान ने नागवारी से उसे घूरा। तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? ये मत भूल कि तू एक मामूली सा सब्जी फरोश है। अगर मैं अपनी आई पर आ गया तो तुझे इस इलाके से निकलवा कर दम लूंगा। फुरकान ने इंतहाई बदतमीजी का मुजाहरा किया और घर के अंदर जाने लगा। शहरोज ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोका। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? तुम इस घर में नहीं जा सकते। शहरोज ने एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा। मेरा और उस लड़की का रिश्ता तय हो चुका है। मुझे अब इस घर में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। फुरकान ने खबासत से मुस्कुराते हुए कहा। फुरकान की बात सुनकर शहरोज को झटका लगा। उसने बेयकीनी से फुरकान की तरफ देखा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। आइजल ने कब इस लड़के को हाँ कर दी थी? अब तुम जाओ यहां से और कहीं और जाकर अपनी सब्जी का ठेला लगाओ। आइंदा के बाद मुझे तुम इस घर के आसपास भी दिखाई ना दो। वैसे ही मुझे इस लड़की पर एतबार नहीं है। इतनी खूबसूरत है, पता नहीं किस किस को अपने हुस्न के जाल में फंसाया होगा। फुरकान ने सर झटकते हुए कहा और वहीं खड़े खड़े आइजल के दामन पर कीचड़ उछाली। फुरकान घर में दाखिल हो गया था, जबकि फुरकान के मुंह से यह सब सुनकर शहरोज का दिमाग सुन सा हो गया, मगर वो वहां से गया नहीं। उसे फुरकान की बात पर एतबार नहीं था। फुरकान आइजल के घर में दाखिल हुआ
तो आइजल सोफे पर अपने घुटनों में सर दिए बैठी हुई थी। फुरकान को देखकर उसके चेहरे पर खौफ छा गया। उसे याद आया कि उसने दरवाजे की कुंडी नहीं लगाई थी जब भी फुरकान धड़ल्ले से घर में घुस आया था। क्यों आए हो तुम यहाँ? आइजल ने रोंदे हुए लहजे में सवाल किया। मैं तो बस ये देखने आया हूं कि मेरी होने वाली दुल्हन कैसी है। कल हम दोनों का निकाह है तो तुम तैयारी कर लेना, फुरकान ने सफाकियत से कहा। कुछ ही देर पहले आइजल की मां मनो मट्टी तले जा सोई थी, मगर इस जालिम शख्स को उस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो आइजल के सामने खड़ा उसे हविस भरी नजरों से देख रहा था। आइजल ने बेबसी से उसे देखा। अभी यहां से चले जाओ, मुझे अपनी मां के लिए खुलकर रोने दो, आइजल ने सिसकियां भरते हुए कहा। मगर फुरकान फिर भी उसकी तरफ बढ़ा। मुझसे कल तक का इंतजार नहीं हो रहा, मेरा दिल कर रहा है तुम्हें आज ही अपना बना लूं। फुरकान ने अपने होंठों पर जबान फेरते हुए खबासत से मुस्कुराते हुए कहा। आइजल ने बुरी तरह से चौंक कर फुरकान की तरफ देखा और फिर इर्द गिर्द देखा। वो घर में बिल्कुल अकेली थी। फुरकान उसके साथ कुछ भी कर सकता था। यकदम उसे अपनी इज्जत खतरे में नजर आने लगी। फुरकान, तुम यहां से जाओ, आइजल ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। उसके चेहरे पर सफेदी छा गई थी, मगर फुरकान हविस भरी नजरों से उसे देखता रहा। आइजल किचन की तरफ दौड़ी और अपने हाथ में छुरी उठा लाई। फुरकान भी उसके पीछे आया था। अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं अपनी जान ले लूंगी, आइजल हलक के बल चिल्लाई। फुरकान उसके हाथ में छुरी देकर हवास बाख्ता हो गया। आइजल, ये क्या पागलपन है, छुरी रख दो, फुरकान ने घबराते हुए कहा। शहरोज दरवाजे के बाहर खड़ा ये मंजर देख रहा था। वो फौरन ही घर के अंदर गया और फुरकान का गिरेबान पकड़कर उसे जमीन पर फेंका और खुद उसको काबू करके उसके ऊपर जाकर बैठा। मैंने तुम्हें वार्न किया था, इस लड़की के साथ कुछ गलत मत करना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, शहरोज आफंदी ने फुरकान के चेहरे पर मुक्कों की बरसात करते हुए कहा। फुरकान शहरोज के लंबे चौड़े वजूद से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका मनहनी सा वजूद शहरोज के वजूद के सामने बिल्कुल बेबस था। शहरोज ने उसे बुरी तरह से मारा था, जबकि आइजन हैरान खड़ी ये मंजर देख रही थी। शहरोज के सर पर जुनून सवार हो गया था। वो जाने कब आइजल से मोहब्बत कर बैठा था और फुरकान ने उसकी मोहब्बत को गलत निगाह से देखने की कोशिश की थी। वो लड़की इस कदर बेबस हो गई थी कि अपनी ही जान लेने लगी थी। मुझे छोड़ दो, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, फुरकान ने शहरोज के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इस लड़की की तरफ देखने की, शहरोज ने गैज़ो गजब से सवाल किया। इसने मुझसे शादी करने की हामी भरी है, फुरकान ने आइजल की तरफ इशारा करते हुए कहा। आइजल छुरी फेंककर अपनी जगह से आगे बढ़ी। मैंने इससे शादी करने की इसीलिए हामी भरी थी क्योंकि इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने इसके साथ निकाह नहीं किया तो ये मुझे मेरे घर से जबरदस्ती ले जाएगा, आइजल ने फूट फूट कर रोते हुए कहा। शहरोज ने बहुत ही जब्त से आइजल की बात सुनी। उसकी गिरफ्त फुरकान के वजूद के ऊपर ढीली हो गई। फुरकान ने इसको मौके गनीमत जाना और शहरोज की गिरफ्त से निकलकर भाग गया। शहरोज ने लब भेंचे उसे भागते हुए देखा। फिर उसने आइजल की तरफ देखा। आइजल भी नम नजरों से उसी की तरफ देख रही थी। तुमने मुझे फुरकान से इसलिए बचाया है ताकि तुम भी मेरा फायदा उठा सको, आइजल गलत फहमी की इंतहा पर खड़ी थी। वो इस वक्त किसी के भी बारे में अच्छा नहीं सोच सकती थी। शहरोज ने जब्त से इस लड़की को देखा। उसी वक्त शहरोज के मोबाइल पर कॉल मौसूल हुई। शहरोज ने फौरन ही फोन उठाकर कान से लगा लिया। वो जिस मकसद के लिए इस इलाके में सब्जी वाले के भेस में रह रहा था, उसका वो मकसद पूरा हो गया था। वो गिरोह पकड़ा गया था। शहरोज ने सुकून की सांस खारिज की। मैं तुम्हें एक लड़के की तफसील भेज रहा हूं, वो जहां कहीं भी है उसे उठा लो, शहरोज आफंदी ने फुरकान के बारे में मालूमात सेंड कर दी और कुछ ही देर में फुरकान उन लोगों के शिकंजे में था। फोन से फारिग होकर फुरकान ने आइजल की तरफ देखा और उसकी आंखों में झांका।
जहां जमाने भर का दर्द रकम था, आज उसकी आंखों के सामने उसकी मां को दफना दिया गया था और आज ही उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ना पड़ा था। यहां तक कि वो बेबसी की उस इंतहा पर पहुंच गई थी कि वो अपनी जान लेने से भी दरेग नहीं कर रही थी। ऐसे में उसका बदगुमान होना तो बनता था। शहरोज आफंदी ने एक ठंडी सांस लेकर खुद को पुरसकून करने की कोशिश की। इस दुनिया में सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। अगर कुछ इज्जतों के लुटेरे होते हैं तो कुछ इज्जतों के मुहाफिज भी होते हैं। मैं भले से कटकर मर जाता मगर तुम्हारी इज्जत पर आंच भी ना आने देता, शहरोज आफंदी ने जख्मी से लहजे में कहा। वो खुद को कोस रहा था कि वो क्यों चंद लम्हों के लिए आइजल से गाफिल हुआ था। वो अपने एक साथी को उस ग्रोह की मालूमात भेज रहा था, मगर उसी वक्त अंदर से आइजल की चीखने चिल्लाने की आवाजें आई थीं। उसकी बात सुनकर आइजल वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी, यहां तक कि उसकी हिचकियां बन गई। मेरी अम्मा मुझे छोड़कर चली गई, अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, मैं बिल्कुल तन्हा हूं। वो फुरकान दोबारा आएगा, तुम हर बार तो मेरी इज्जत बचाने के लिए नहीं आओगे। मुझे अपनी ये जंग अकेले ही लड़नी पड़ेगी। अगर फुरकान नहीं आएगा तो कोई और आएगा, क्योंकि सब जानते हैं मैं अकेली हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। मैं कब तक अपनी इज्जत संभाल कर रखूंगी। वो हिज़यानी होकर चीख रही थी। शहरोज आफंदी ने दुख से इस लड़की को देखा। मुझसे शादी करोगी? शहरोज आफंदी आगे बढ़ा और उसके बाजू थाम कर उसे अपने सामने खड़ा करके उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल किया था। शहरोज आफंदी की बात सुनकर आइजल लम्हे भर को साकित हो गई। उसकी आंखें पथरा गई थीं। मैं वादा करता हूं जिंदगी भर तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करूंगा, कभी भी किसी मैली निगाह तुम पर पड़ने नहीं दूंगा, तुम्हारे साथ हमेशा साया बनकर चलूंगा। बस एक बार मेरा हाथ थाम लो, तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। शहरोज आफंदी ने जब्त से उससे सवाल किया। वो ऊंचा लंबा मर्द उसके सामने सवाली बनकर खड़ा था। आइजल ने ठुठक कर उसे देखा। इज्जत भरी जिंदगी मुंतजिर थी, बस उसने हाथ बढ़ाना था और उस जिंदगी को थाम लेना था। तुम वाकई मुझसे शादी करोगे? मुझे इज्जत भरी जिंदगी दोगे? आइजल ने थके हुए लहजे में सवाल किया। उसकी बात सुनकर शहरोज आफंदी ने धीरे से अज़बात में सर हिला दिया और आइजल फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों मौलवी साहब के सामने बैठे थे और आइजल शहरोज आफंदी के निकाह में आ गई थी। आइजल गुमसुम सी मस्जिद के अहाते में बैठी थी और उससे कुछ फासले पर शहरोज आफंदी किसी से बात कर रहा था और फिर चंद लम्हों बाद मस्जिद के बाहर एक काले रंग की लैंड क्रूजर आकर रुकी। आइजल ने हैरत से उस गाड़ी को देखा और फिर उससे भी ज्यादा हैरानी से उस गाड़ी की तरफ बढ़ते शहरोज को देखा। उस गाड़ी में से एक आदमी उतरा था और गाड़ी की चाबी शहरोज के हवाले की थी और फिर वो आदमी वहां से चला गया, जबकि आइजल हैरान परेशान ये सब देख रही थी। शहरोज पलटकर आइजल की तरफ आया और उसका हाथ थामकर उसे गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ा। शहरोज ने आइजल के लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला तो आइजल ने शहरोज को यूं देखा जैसे वो उसकी दिमागी हालत पर शुबा कर रही हो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये तुम किसकी गाड़ी में बिठा रहे हो? आइजल ने एहतजाज करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शहरोज आफंदी के चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट फैल गई। तुम बैठो तो सही, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं, शहरोज ने नरम लहजे में कहा। नहीं, मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी, तुम रिक्शा लेकर आओ, हम उसमें घर चलेंगे, आइजल ने जिद्दी से लहजे में कहा। मगर शहरोज ने उसकी कोई भी बात ना सुनी और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद गाड़ी हवाओं से बातें करने लगी, जबकि आइजल हैरान और परेशान सी बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। कुछ देर बाद गाड़ी एक छोटे से मगर खूबसूरत बंगले के सामने जाकर रुकी। आइजल ने हैरानी से शहरोज की तरफ देखा, मगर उसने कुछ कहे बगैर वो गाड़ी से उतर गया
और इसकी जानिब का दरवाज़ा खोलकर उसे गाड़ी से उतारा। आइजल सत्ते की कैफियत में ये सब कुछ देख रही थी। वेलकम होम मिसेस शहरोज आफंदी। शहरोज ने आइजल के कानों में सरगोशी की और उसके सामने अपना कार्ड निकाला जहां उसका पूरा नाम और उसका पेशा दर्ज था। आइजल की आंखें हैरानी से फैल गईं, जबकि शहरोज उसका हाथ थामकर उसे अपने साथ लिए अंदर की जानिब बढ़ा। शहरोज आफंदी के घर के लॉन में लगा इकलौता गुलाब का फूल उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगा था। कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों पकड़ा है? छोड़ दो मुझे। फुरकान खुद को छुड़ाते बुरी तरह से चीख रहा था, मगर उस अंधेरे कमरे में उसकी चीखें सुनने वाला कोई भी नहीं था। मुझे आज़ाद कर दो, फुरकान हलक के बल चिल्लाया और कुर्सी से बंधे अपने हाथ खोलने की नाकाम कोशिश की, मगर उसके हाथ इस कदर सख्ती से बंधे हुए थे कि जितना वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था उतना ही वो अजियत में मुब्तला हो रहा था। चीख चीख कर उसका गला भी बैठ गया था और अब वो ऊंची आवाज में रोना शुरू हो गया था, मगर अभी तो उसके लिए इस अजियत की शुरुआत थी। कुछ देर बाद उस अंधेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और शहरोज आफंदी अपने चेहरे पर काले रंग का मास्क लगाए उसके सामने आन खड़ा हुआ। फुरकान ने नजरें उठाकर अपने सामने खड़े इस शख्स को देखा, मगर वो उसे पहचान नहीं सका। अगर शहरोज उसके सामने अपना मास्क हटा कर आ जाता तो वो फिर भी उसे ना पहचान सकता था। कौन हो तुम और मुझे यहां क्यों कैद करके रखा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फुरकान ने रोते हुए सवाल किया। अभी तो सिर्फ अंधेरे कमरे में बंद किया था, उस पर कोई तशद्दुद नहीं किया था, मगर वो अभी से रोने लगा था। उसकी हिम्मत खत्म हो गई थी, क्योंकि कल शाम से अब तक उसके सर पर धीरे धीरे करके पानी की एक एक बूंद गिर रही थी। वो जिस्मानी मार किसी भी तरह से सह लेता, मगर ज़हनी मार नहीं सह पा रहा था। अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं और तुमने अभी से हार मान ली। शहरोज आफंदी की गंभीर आवाज उसके कानों से टकराई थी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फुरकान ने बुलंद आवाज में रोते हुए सवाल किया था। शहरोज आफंदी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, मगर उसकी आंखें उसके बरक्स थीं। वो आगे बढ़ा और फुरकान के बालों को अपनी मुट्ठी में दबोचकर उसका चेहरा उठाकर अपने सामने किया। जब तक मैं ना चाहूं तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। अब तुम यहां रहकर अपने सारे गुनाह याद करो जो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में किए हैं, शहरोज आफंदी ने सर्द लहजे में कहा, और पानी की बूंदें गिरने की रफ्तार मजीद तेज कर दी गई, यहां तक कि फुरकान पागल होकर बुलंद आवाज से चीखने चिल्लाने लगा था। शहरोज आफंदी ने बहुत इत्मीनान से उसे देखा और फिर उसे उसी हालत में छोड़कर कमरे से बाहर आ गया। उसके पीछे कमरे में दोबारा से अंधेरा छा गया था। दरवाजे के बाहर उसका आदमी खड़ा था। इस लड़के को कल तक छोड़ देना, मगर इससे पहले इसकी ऐसी हालत कर देना कि ये 1 माह तक चल फिर ना सके, शहरोज आफंदी ने सफाक से लहजे में कहा और वहां से चला गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।